ایک شمول نام کے بزرگ تھے، بنی اسرائیل سے تعلق تھا، بڑی عبادت کرتے تھے، 1000 سال عبادت فرمائی، ساری رات نفل پڑھتے، سارا دن روزہ رکھتے، اور پھر روزہ رکھ کے تو کافروں سے جہاد کرتے، ساری زندگی جہاد میں گزاری، جس جنگ میں گئے اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ یہ ذرا سوچئے کہ جس کا تذکرہ میرے نبی پاک فرما رہے ہیں وہ کتنا بڑا آدمی ہو۔ ولی اگرچہ بنی اسرائیل کے تھے لیکن اتنا زبردست ان کا جہاد کرنے کا طریقہ تھا، بڑا جہاد کیا، پڑی انہوں نے، کافر بڑے پریشان تھے کہ بندہ قابو نہیں آتا، بڑی دور تک بات گئی، بڑی جد و جہد کی، لیکن حضرت شمعون علیہ رحمہ بنی اسرائیل کے ولی تھے، قابو نہ آئے، آخر ان کی بیوی کو خریدا۔ اور یہ ایک تو مثالیں میریوں کی آ گئی ہیں، خامد بھی بکتے ہیں، یاد رکھ، بھائی بھی بکتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ جب تو بکنے پہ آتا ہے تو پھر وہ اپنے معیار کو قائم نہیں رکھتا، پھر لوگ گر جاتے ہیں معیار سے۔ بیوی کو خریدا، کہنے لگے تو نے اس کے ساتھ رہ کے کیا وقت گزارا ہے؟ کہنے لگی کوئی سکھ نہیں پایا، ایک وقت روٹی ایک وقت کی بھوک، درویشی کا درس دیتا ہے، کچھ بھی نہیں ملا۔ حضرت شمعون علیہ رحمہ کی بیوی جب خریدی گئی، کہنے لگے جب چونکہ یہ کم سوتے ہیں اور جتنی دیر سوتے ہیں گہری نیند سوتے ہیں، جب گہری نیند سو جائے تو رسیوں کے ساتھ جکڑ دینا۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے، رسیوں کے ساتھ جکڑ دیا بی پی نے۔ حضرت شمعون اٹھتے نہ تو اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا دیکھا، اللہ اکبر کہا، جب اللہ اکبر کہا تو ساری رسیاں ٹوٹ گئی۔ بیوی سے کہنے لگے تو نے کیوں باندھا؟ اس نے پھر دھوکہ دیا، کہنے لگی ہر جنگ میں لوگ آ کے بتاتے تھے تیرا خامن بڑا دلیر ہے، میں نے کہا میں بھی دیکھوں کتنا دلیر ہے۔ سارے آئے، ایک نیا رنگ، ایک نیا روح، ایک نیا طریقہ، تو میں نے تو آزمایا ہے، اور یہ تو چھوٹی چھوٹی رسیاں تھی۔ آپ فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے، اگر تو نے آزمایا تو پھر دیکھ بھی لیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے زنجیروں سے باندھ دیا، لوہے کی زنجیروں، اٹھے تو بندھا ہوا پایا، اللہ اکبر کہا تو زنجیریں بھی ٹوٹ گئی۔ فرمانے لگے یہ تو نے کیا کیا؟ کہنے لگی دیکھنا چاہتی تھی، کچی رسیاں تو توڑ لیتے ہو، زنجیریں بھی ٹوٹتی ہیں کہ نہیں؟ ہاں بھائی ٹھیک آ کے لوگ بتاتے ہیں تو واقعی دلیر ہے، ہر جنگ میں کامیاب ہوتا ہے۔ اب قریب بیٹھنے لگی، کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی، فریب کرنے لگی، دھوکہ دینے لگی۔ کہنے لگی بتاؤ تو صحیح طاقت کا راز کیا ہے؟ مومن نرم دل ہوتا ہے، ایک دفعہ کوئی مسکرا کے پاس آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرا خیر خواہ ہے، اس لیے مومن دھوکے کھاتے ہیں، دھوکے دیتے نہیں۔ جب اس نے محبت کے لب و لہجے میں بات کی تو جناب شمعون کہنے لگے اور تو میں کسی چیز سے قابو نہیں آ سکتا، بال ان کے لمبے لمبے تھے، بیٹھتے تھے تو نیچے بال آتے تھے، ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زلف کانوں تک کی اجازت دی ہے، کندھوں تک کی اجازت ہے، کندھوں سے نیچے بال آئے تو حرام دکھائے اعلیٰ، کندھوں سے نیچے جائز نہیں۔ ان کے بال بڑے لمبے تھے، بیٹھتے تھے تو نیچے دب جاتے۔ حضرت شمعون کہنے لگے مجھے دنیا کی تو کوئی طاقت نہیں باندھ سکتی، ہاں میرے بالوں سے مجھے باندھ دیا جائے تو پھر نہیں میں اٹھ سکتا۔ بس اس کے ہاتھ بات آ گئی، اس نے کھانا بھی کھلایا، اس نے بستر بھی بچھا کے دیا، پیر بھی دبائے، جب سو گئے تو اس نے ان کے بالوں سے انہیں باندھ دیا اور کافروں کو جا کے بتایا کہ آج نہیں کھول سکے گا۔ جب اٹھے تو بندھا ہوا دیکھا، بیوی کی طرف دیکھا، اب یہ خیال نہیں آیا کھول دے، کہنے لگی ساری زندگی غربت دی تو نے، یہ دیکھ مجھے ہیرے ملے ہیں، کنگن ملے، یہ دیکھ میرے کانوں میں ہیرا، سونا، چاندی، ہر چیز، چل جا، تیرا کیا کرنا ہے؟ ساری رات عبادتیں، سارا دن تو ذکر فکر اور جہاد میں گزار دیتا، دھوکہ دیا۔ ان کافروں نے آ کے ستون کے ساتھ چارپائی اٹھائی اور ستون کے ساتھ کھڑی کی، پھر رسیوں اور زنجیروں سے باندھا، اللہ کے ولی کا سب سے پہلے ناک کاٹا، پھر تلوار کے ساتھ کان کاٹے، پھر آنکھیں نکالی۔ جب زبان کاٹنے لگے تو انہوں نے اللہ کو آواز دی، کہا میرے مولا میں کوئی لاوارث ہوں کہ کوئی مجھے دھوکہ دے اور اس انداز میں قتل کر دے؟ مولا میں دھوکے کھاتا رہا، میں کوئی لاوارث تو نہیں۔ جب یہ دعا فرمائی تو پھر بجلی چمکی، پھر اللہ کا قہر برسا۔ امام غزالی فرماتے ہیں وہ کافر جو آئے تھے وہ جلے، اس طرح جلے کہ ان کی ہوا بھی اڑ گئی۔ اب وہ بی بی دوڑی آئی اور پیروں میں بیٹھی، کہنے لگی بخش دو۔ آپ فرمانے لگے ساری زندگی میں تیرے دھوکے کھاتا رہا، اب اللہ کی لاٹھی چلنے لگی ہے، اس کی آواز نہیں ہوتی، عبدو خدا کے حوالے ہے، پیروں سے آگ چلی۔ کہنے لگے وہ دیکھنا سونے سے کیا تجھے بچائے، وہ جو تیرے ہاتھوں میں ہیرے کے کنگن ہیں انہیں کیا تیری حفاظت کرے۔
अब वो जो तेरे कानों के अंदर सोने चांदी की बालियां और कांटे हैं और झूमर है, उसको क्या तेरे तुझे निजात दिलाए। जलती रही, तड़पती रही, चीखती चिल्लाती रही और इस तरह चीखी कि वो खाक बनी, हवा में उड़ी। अल्लाह ने अपने वली की आंखें भी दोबारा अता फरमा दी, कान भी दोबारा अता फरमा दी। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से ज्यादा ताकत दी। वो जब बाहर निकले तो ऐलान करने थे, लोगों देखो धोखा वाले जल गए, तबाह हो गए, नामो निशान मिट गया और मुझे धोखा दिया गया था तो अल्लाह ने मुझे पहले से ज्यादा ताकतें अता फरमा दी, पहले से ज्यादा कुव्वतें। धोखा न दे, फरेब न करना। जो आप किसी को दे रहे हैं, और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की एक हदीस तो ये बताती है, जो दुनिया में धोखा देगा दुनिया में ही उसका नुकसान उठाएगा। एक होता है मोहताज, एक होता है फ़कीर, इसमें फ़र्क है। एक आदमी को अच्छे कपड़े पहनने के पैसे नहीं मिलते तो वो फ़कीर नहीं, वो मोहताज है। उसके पास तो है ही नहीं तो वो कहाँ से पहने। लेकिन एक आदमी के पास लाखों और करोड़ों रुपया पड़ा है लेकिन वो भी सादा सा लिबास पहनना पसंद करता है, तो ये फ़कीर है, ये दरवेश है। कंजूस और दरवेश में भी फ़र्क होता। एक आदमी उसका पैसे लगाने को दिल ही नहीं चाहता, खर्च ही नहीं करना चाहता, वो बखील है, कंजूस है। लेकिन एक शख्स वो है जिसके पास सरमाया है, माल है, लेकिन वो अपनी ज़ात को बढ़ाना पसंद नहीं करता, वो दरवेश है, वो फ़कीर है। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास इतने पैसे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू पक्का जन्नती है पर सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा। हुजूर मेरी गलती, फरमाया जितने पैसे हैं उतना हिसाब भी तो देना है। इसके पास सिर्फ हैंड कैरी बैग होता है ना, वो फटाफट बाहर आ जाता है, और जिसके जितने ज़्यादा बैग होते हैं उसको उतनी देर चेन पे खड़े रह के इंतज़ार करना पड़ता है। तो फरमाया कस्टम भी तो तूने अदा करना है ना भाई, निकल के आना है उस जंगल से, तू कैसे जाएगा, जितना माल है अपना हिसाब देना है। तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ बड़े मालदार थे, 80-80 हज़ार दिरहम तो आपके इंतकाल के बाद आपकी अज़वाज के हिस्से में आए थे। इतने तगड़े मालदार थे और देने का अंदाज ये था कि अपनी बीवी और बच्चों को खुली छुट्टी थी, कहते थे जो जिसका दिल का है खाओ। एक दिन में 5 अलग अलग खाने भी तुम पकाना चाहो तो तुम्हें इजाज़त है। कंजूस नहीं थे, बखील नहीं थे, लेकिन खुद जब खाना खाते थे तो दाल को पीस कर शोरबा बनाकर उसमें रोटियां भिगो के खाते थे। लोग पूछते कि जनाब हमारे लिए सारा कुछ है, बखील भी आप कोई नहीं, मालदार भी, ये क्या कर रहे हैं। तो फरमाते थे सुरीद खा रहा हूँ, ये खाना मेरे मोहम्मद की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया ये करीम का तरीका है, मैं वो तरीका, मैं फ़र्ज़ मोहब्बत अदा कर रहा हूँ, किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ। ये मेरा अंदाज है, मेरी ज़ात के बारे में मेरा यही अंदाज है। सिरका खा रहे थे तो बेटे ने कहा अब्बा जी आप क्यों खा रहे हैं, कितने दिन हो गए आपने भुना हुआ गोश्त नहीं खाया, तो खाएं। फरमाने लगे बेटे कल लुकमा उठाया था गोश्त खाने को तो मुझे अपने नबी का फ़क्र याद आ गया, मुझे रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो महीना खाना नहीं खाया वो याद आया है। तो हुजूर की वो चीज़ें मुझे इन आला ग़िज़ाओं में मुब्तला होने नहीं देती, तुम्हें इजाज़त है। तुम भाई बादशाही में फ़कीरी, आज लोगों के पास इतना कुछ होता नहीं जितना कुछ वो अपने आप को दिखाना चाहते, दिखाने का मामला हो गया, बल्कि कर्ज उठा के लोग अपने आप को बड़ा करके पेश करते, हालांकि ऐसा होता नहीं। इस्लाम फ़कीरी, बादशाही में फ़कीरी, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अगर आप इसको समझ जाएं तो बहुत सारी चीज़ें जो है वैसी खुल जाएंगी। एक सहाबी ने कहा हुजूर मेरे जिस्म को सुकून नहीं, वजूद को सुकून नहीं, ज़ाहिरी वजूद की बात की। तो हुजूर ने फरमाया इज़हद फिद दुनिया फरीहिल क़ल्ब वजस, फरमाया दुनिया से दिल दूर कर ले, इज़हद फिद दुनिया, दुनिया में ज़ुहद इकट्ठा कर ले, दुनियादारी से ज़रा अपने दिल को दूर कर, अल्लाह तेरे वजूद को भी सुकून अता करेगा और तेरे दिल को भी सुकून अता फरमाएगा। दुनियादारी इज़्ज़त फिद दुनिया, जरा हट ना दुनिया से, हट जरा, अल्लाह तेरे दिल को भी सुकून दे देगा और तेरे जिस्म को भी। अल्लाह सुकून, राहत, फरहत, फरीहन फिल क़ल्ब के लफ्ज़ हदीस में आए, फरहत, फरहत का माना खुशी, तसल्ली, ताजगी अल्लाह अता फरमाएगा जब तू अपने आप को थोड़ा दुनिया से बचाएगा। अजीज़ों बड़ा शौक़ है
हम देखते हैं प्रोटोकॉल का बड़ा रंग है, बड़ा प्रोटोकॉल है लोगों का। 2 गाड़ियां आगे 2 पीछे, बंदा एक बैठा है। वो समझता है कि वो जो ये ज़िंदगी है ये तो शायद किसी को और मुयसर ही नहीं। और मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार कैसा अजीब शख्स है। जिन पुलिस वालों का इसने प्रोटोकॉल पे लगाया है ना, हुकूमत ख़त्म होगी तो यही पकड़ के इसे जेल में डालेंगे, लेकिन ये खुश है। हज़रत अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक दरवेश था, तो वो सड़क से गुज़र रहा था। अलाउद्दीन खिलजी का ज़माना था। अलाउद्दीन खिलजी बहुत बड़े हुक्मरान हुए मुत्तहिदा हिंदुस्तान के। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान सब पे इनकी मुश्तरका हुकूमत। सो इनका एक गवर्नर रोड से गुजरना था उसने, तो सिपाही जो थे वो रास्ते साफ़ करा रहे थे। तो एक बुजुर्ग थे, अबू अली कलंदर के मुरीद थे, खलीफा थे, तो वो भी रोड पे गुजर रहे। तो तने तनहा हाथ में छड़ी पकड़ी है, तने तनहा गुजर रहे हैं। तो कहने लगे बाबा जी साइड में हो जाए, गवर्नर साहब ने गुजरना है। तो फरमाने लगे इतनी सड़क पड़ी है, गुजर जाएगा कि मुझे साइड पे करके गुजर जाए। मैं कहा नहीं आपकी मेहरबानी हट जाए। कहा भाई मैं क्यों हटूँ, वजह उसकी इसमें इतना रास्ता है, गुजर जाए, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, तुम मुझे साइड पे करोगे, फिर रास्ता ढूंढता फिरूंगा। कहा बाबा तेरी मेहरबानी हट जा। निगाह फकर में शाने सिकंदरी क्या है, और खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। उसने कहा मैं उसको क्या समझता हूँ, बादशाह होगा तो गार होगा, मैं उसे क्या समझता हूँ। और मैं नाराज ना होइएगा, अमीरों को खराब गरीबों ने किया है, बड़ों को खराब छोटों ने किया। अगर हम गाड़ियों के आगे पीछे भागना छोड़ दें तो लीडर सियाने हो जाए। ये हमारे नारे तबाही करते हैं, हम नहीं समझते कि हम कितना नुकसान करते हैं। निगाह फकर में शानो सिकंदरी क्या, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी। इकबाल कहते हैं कि वो तो बड़े फकीर है जिनको तुम बादशाह समझते हो, तुम्हारा टैक्स ना मिले तो उनकी हुकूमत नहीं चलती। तो खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या। खैर हजरत अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के वो दरवेश जो थे ना, वो रोड पे कहा बाबा जी हट जाए। कहने लगे नहीं हटता। उन्होंने बाजू पकड़ के ना बाबा जी को जरा जोर लगाना चाहा, तो बाबा जी ना आलती पालती मार के, चौकड़ी मार के तो ज़मीन पे बैठ गए। कहते जो उठाया जाता हो तो उठा लो। अब तो दरवेश कभी जिद करते नहीं, और अगर करें तो मुस्लिम शरीफ में मेरे नबी पाक ने फरमाया रुब्बा अशरज़ अकबर लौ अक़सम अलल्लाह लअबर्रा। फरमाया रब करीम का बंदा तो अल्लाह को कसम दे दे तो अल्लाह उसकी कसम को पूरा फरमा देता है। अल्लाह उसकी कसम को पूरा फरमाता है। तो वो मैं जाओ उठता हूँ तो उठा लो। बहस होने लगी, लोग इकट्ठे हो गए, रश हो गया। फिर इतनी देर में गवर्नर साहब की सवारी भी पहुंच गई। तो गवर्नर साहब कहने लगे बाबा उठता क्यों नहीं। तो लगे क्यों उठूँ, इतना रास्ता है गुजर जा। मैं बाबा उठ क्यों शोर डाला हुआ। कहने लगे तू मेरे नौकर का नौकर हो के मुझे उठने का कहता है। मेरे नौकर का तो गुस्सा आया तो उसने बाबा जी को थप्पड़ मार दिया। बाबा जी और हंसे, कहने लगे तुझे कहा था ना नौकर का नौकर है, तू वाकई नौकर है। उसने कहा मैं थप्पड़ फाड़ता हूँ। बाबा हंसता, ये ज्यादा इंसल्ट होती है। आप करके देखें, आप गुस्से के जवाब में गुस्सा करें तो सामने वाले को कोई सजा नहीं। आप कभी गाली के जवाब में मुस्कुरा देना, याद अब मैं तेरे साथ बात करूँ, तेरे साथ बहस करूँ, तो ये ज्यादा बड़ी सजा। याद रखिएगा, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते, हाथ उठाते नहीं, उसे उसकी नज़रों से गिरा देते। जब थप्पड़ मारा तो बाबा जी हंस पड़े। कहने लगे तुझे कहा था ना तू गुलाम है, तू भाई वाकई गुलाम है। अब जब हंसे तो अब उसको ठारस हुई, तवज्जो हुई। कहने लगा बाबा माजरा क्या है, मैं कैसे गुलाम का गुलाम हूँ। तो बाबा कहने लगा देखना, तुझे मस्जिद आने का कहे तो तेरे लिए मुसीबत है। इतने लोगों को तू टाइम दे लेता है लेकिन अल्लाह को तू नहीं दे पाता। तो तू नफ्स का गुलाम है और नफ्स मेरा गुलाम है, लिहाजा तू मेरे गुलाम का गुलाम है, तू मेरे नौकर का। कहने लगे ये सारी नफ्स परस्ती है, ये जो तूने दुनियादारी इकट्ठी की हुई है ना, ये जो तेरे नारे लग रहे हैं और तू समझता है कि ये मेरे, ये तू तनख्वाह देता, तेरे नारे लगाते हैं। जरा तनख्वाह छोड़ के बात कर, फिर देख तेरे कितने नारे लगते हैं। तू ये डरते हैं तुझसे लोग, तेरे आगे पीछे भागते हैं। जरा इक़्तिदार से साइल हो तो ये पता लगे तेरी कीमत क्या है। तू समझता है कि मेरी जेब में पैसे या लोग मुझे सलूट करते हैं तो नहीं है, तुझे सलाम कोई भी नहीं कर रहा, तेरी जेब को सलाम हो रहा है, तेरे उहदे इक़्तिदार को और तेरी वहशत और दहशत को सलाम है। उसने कहा हज़रत जी मुझे सलाम कब होगा। तो फरमाने लगे जब तू बादशाही में फ़कीरी करेगा, जब तू बादशाही में भी फ़कीरी होती है मेरे अज़ीज़ों, बादशाही में भी फ़कीरी होती है। आपके इस हिंदुस्तान का एक बादशाह का नाम औरंगज़ेब आलमगीर भी है।
औरंगजेब आलमगीर के इंतकाल का वक्त आया ना, तो औरंगजेब आलमगीर बीमार हुए, आखिरी वक्त मिंबर पे चढ़े और लोगों को कहने लगे, लोगों तो मुझसे अक्सर पूछते थे ना कि बादशाह तेरी 2 उंगलियों पे स्याही क्यों लगी रहती है और तेरे हाथों में सुराख क्यों रहते हैं। औरंगजेब आलमगीर, ये मैं आपको फरिश्तों की कहानी नहीं सुना रहा, इस दुनिया में, इस दौर में, इस धरती पर बसने वाले लोगों की कल की बात सुना रहा हूँ। इस हिंदुस्तान में हिंदुओं के मुल्क पर हुकूमत करने वाले एक मुसलमान दयालतदार बादशाह की बात सुनो। कहते हाथों में सुराख का पूछते थे ना तुम लोग, और तुम मुझे पूछा करते थे तेरे हाथों पे स्याही क्यों लगी हुई है। औरंगजेब आलमगीर मुत्तहिदा हिंदुस्तान का मुतलकुल ऐलान बादशाह कहने लगा, मेरे इंतकाल का वक्त आ गया है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी हुकूमत के ख़जाने से 1 रुपया तनख्वाह नहीं ली। मैं किताबत करता था, किताबें लिख के जो मुझे मजदूरी मिलती थी, और मैं टोपियाँ सिया करता था, मेरे हाथों में सुराख हो जाते थे। मैंने उसका रिज़्क़ हलाल खाया है। और फरमाया 50 रुपये फ़लाँ जगह मैंने रख दिए हैं, मैं मर जाऊँ तो उसका मुझे कफन दे देना और लोगों को बताना कि वो हिंदुओं, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह मुझे कहा था मैंने उस तरह हुकूमत की। वो खुतबा पढ़ रहे थे, औरंगजेब खुतबा पढ़ रहे थे और गलियों में खड़े हिंदू कलमा पढ़ पढ़ के मुसलमान हो रहे थे। मेरे दोस्त, ये बादशाही में फ़कीर। हमारे पास तो पैसे आते हैं तो ड्राइवर की जिम्मेदारी है, ये भी प्रोटोकॉल है। ड्राइवर ने गाड़ी भी चलानी है और साहब का दरवाज़ा भी खोलना है उसने। अंदर बैठे के तो दरवाज़ा भी ड्राइवर साहब ने नफ्स परस्ती है, जितना मर्जी आगे ले जाओ, इतना मर्जी। ये कोई बादशाही, ये कोई आपका बड़ापन नहीं है। वो तनख्वाह लेता है, मजबूर है, क्या करे। हो सकता है कल को उसके पास पैसे आए तो बदला लेने के लिए आपको बुला लेके चल मेरा दरवाज़ा। वो मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ थोड़ी ऐसे कर रहा है। हम सरा माल आता है तो हम बड़े बन जाते हैं। जो बड़े थे वो हज़रत मौला कायनात शेर खुदा अलीगुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह को नसीहत ही कर दे हुजूर मुझे कोई। तो हुजूर ने फरमाया, अली जो दुनिया में प्रोटोकॉल लेता है आखिरत में रुसवा हो जाता है। जो दुनिया में दुनियादारी, दबदबे, तंतने की ख्वाहिश करता है, ख्वाहिश कर। तो मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा अजीब जुमला लिखा है। मुल्ला रूमी कहते हैं, हमारे पास फिरौन जितने पैसे नहीं, नमरूद जितनी दौलत नहीं, वरना कई लोगों का खुदा बनने को दिल करता है। माज़ अल्लाह ताला। वो कहते कई लोगों का दिल करता है कि लोग हमें सजदा करें, लेकिन फिरौन और नमरूद जितनी ताकत दौलत नहीं, वरना लोग कराए। माज़ अल्लाह ताला, ख्वाहिशात नफ्स इतनी बढ़ गई। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। हमारे लीडरान कहते हैं 2-4 बंदे हल्के में मरे ना तो इलेक्शन का मजा ही नहीं। माज़ अल्लाह ताला, ये हमारा हाल हो गया। हम नाराबाजी की कायल कौम है, हम नारों पे जिंदा रहने वाले नफ्स परस्त बनते जा रहे हैं। शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हुए रसूल करीम ने फरमाया, जो यहाँ इज्जतें ढूंढता है, यहाँ ख्वाहिश करता है नारों की, प्रोटोकॉल की, आखिरत में रुसवा कर दिया जाता है। और फरमाया, जो यहाँ झुक जाता है अल्लाह क़यामत में उसे इज्जतें अता फरमा देगा। ये हुजूर ने नसीहत फरमाई। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, ज़माना डरता था, बड़ा नाम है। फ़कीरी और चीज़ है, दरवेशी। इकबाल कहते हैं, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरते शनास करे अता तुझको, सुकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेची गरीबी में नाम पैदा कर। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रात को बैठ के ना लिख रहे थे, तो एक नौजवान आपकी खिदमत के लिए रहता था हर वक्त। हज़रत जी लिख रहे थे, चिराग जल रहा था तो वो तहरीर कर रहे थे। एक मेहमान भी आया हुआ था, तो वो नौजवान ना बैठे बैठे ना लेटा तो सो गया। तो जो है आपकी मेरी बात पे, बैठा बैठा ना वो बेचारा सो गया। तो हज़रत ने तकिया पेश कर दिया। वो नौजवान ने तकिया पकड़ा तो उसने लपाट के वो गहरी नींद चला गया। एक झोंका हवा का आया तो चिराग गुल हो गया। मेहमान बैठा था, कहने लगा, अल्लाह जी मैं चिराग जला दूँ? फरमाने लगे, नहीं, मेहमान से खिदमत नहीं लेनी चाहिए, मैं जलाता हूँ। काफ़ी इसको उठा ले, कहने लगे जवानों को नींद ज़्यादा आती है, सोया रहने दो। हुजूर सोने तो नहीं आया, खिदमत के लिए आया। फरमाने लगे, यार सोया रहने तो क्या अर्ज है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ उठे, चिराग जलाया, वापस आके बैठे तो वो देखे ना, ये बादशाहों के लिए तो नहीं ना ऐसा होता, बादशाह तो नहीं ना कर सकते। यहाँ तो थोड़ा सा जिसके पास पैसा आ जाए
وہ کہتا ہے کہ تو نوکر میرے منہ میں کبھی لقمہ بھی ڈال دے تو پھر ہی ہے، وہ میکس کا مجھ سے تنخواہ لیتا ہے اور اب یہ اتنا کام بھی نہیں کر سکتا، ہر کام ہم کرانا پسند کرتے ہیں۔ کہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہنے لگا حضور عجیب آپ بادشاہ ہیں، آپ نے غلام کو ڈرایا ہی نہیں۔ حضرت عمر نے کیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو قانون پیش کیا بڑا زبردست ہے۔ فرمانے لگے قمت انا عمر بن عبدالعزیز، رجعت انا عمر بن عبدالعزیز۔ فرمانے لگے کیا ہو گیا ہے، میں جب چراغ جلانے گیا تھا تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن میں تبدیل محتسب نے جوزی نے لکھا ہے، کہنے لگے قمت جب گیا تھا انا عمر بن عبدالعزیز، پھر بھی عمر بن رجعت، اور میں لوٹ آیا ہوں، واپس آیا ہوں تو دیکھ لو کوئی کمی تو نہیں ہوئی، میرا باپ بھی وہی ہے، میں بھی انا عمر بن عبدالعزیز نے بدلا تو دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ بادشاہی میں جو فقیری ہے نا میرے دوست، جو اس کی لذت ہے، دیکھیے نا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو جہاں کے بادشاہ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرے دو وزیر زمین پہ ہیں، دو آسمانوں پہ ہیں۔ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بولیے نا، دو میرے وزیر ترمذی کی حدیث ہے، دو زمین پہ ہیں، دو حضور زمین والے وزیر کون سے ہیں؟ فرمایا ابو بکر اور عمر۔ آسمان والے کون ہیں؟ فرمایا جبریل اور میکائیل علیہ السلام۔ میرے دو وزیر یہاں ہیں، دو وزیر حضور بادشاہ ہے، وہ دو عالم کی رحمت تھے، جہاں چاہتے وہیں رہتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ حضور دو جہاں کے بادشاہ ہیں، لیکن میرے نبی پاک کپڑا خود سی رہے ہیں، جوتا ٹوٹ گئے ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گانٹھ بھی، ان تو میرے خیال ہے جوتی گزارنے کا موقع نہیں دیا جی۔ میرا نہیں خیال کہ اب کوئی 10,000 لوگ جو تنخواہ لیتا ہے وہ بھی جوتا گانٹھتا ہو، نہیں آپ ہی کی گھٹتا ہے، کسی کو بھی نہیں گھٹائی تھا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک بات کر لو۔ نبی پاک جوتا بھی خود گانٹھتے، کپڑوں کو پیوند بھی، حضور اپنے کپڑے دھو بھی خود لیتے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بکریوں کا دودھ بھی دھوئے لیتے، اور ایسا بھی ہوتا۔ یہ بادشاہی میں فقیری ہے نا، دو جہاں کے بادشاہ، لیکن سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہیں گھر آئے، کہا اس کا کھانا تیار ہے؟ کہا نہیں حضور ابھی تو کھانا تیار کرنے، فرمایا تم آگ جلاؤ میں آٹا گوندھ دیتا ہوں۔ کس کی بات ہے؟ نہیں لڑنا چاہیے، رکھنا چاہیے، تجھے منگیا دے ہاں پیسے میرے کو پہلی کے، میں ڈنڈے نہیں مار دے، میں آیا تو پتہ نہیں میں کدی بلا دا نام دوسرا ٹکر ہی نہیں پکایا، میں آ گیا کار، تو پتہ ہی نہیں لگا میں ہی آ گیا کار۔ اللہ خیر کہ بھائی ہٹلر نہ بنو، ہر جگہ ہٹلر نہ بنو، حسن سلوک زندگی کا حصہ ہے، پاکیزگی زندگی کا حصہ ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گیا نبی کریم سے ملنے تو موٹے بان کی چارپائی، ہم اسے اسی منجدی منجی آندے ساؤں، موٹے بان کی چارپائی، مشکات کی حدیث ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں سخت دل والا شخص تھا، حضور سے ملنے گیا تو نبی پاک آرام کر رہے تھے چارپائی، میں جا کے قریب زمین پہ بیٹھ گیا، حضور نے آہٹ سنی تو حضور اٹھے۔ فرماتے ہیں جب نبی پاک اٹھ کے بیٹھے تو حضور کے وجود پر میں نے بان کے نشان دیکھے، کہتے ہیں میں رو پڑا، سخت دلتا پر رو پڑا۔ میں نے کہا حضور کیسے رو، کس طرح موجیں کرے اور آپ اس بان کی چارپائی پہ؟ تو میرے کریم رسول نے فرمایا عمر تجھے اچھا نہیں لگتا، اور جتنی موج کرنی ہے دنیا میں کر لے، آخرت میں ذلیل ہو جائے۔ فرمایا ان کو کرنے دے موج، وہ تو ذلیل ہونے کے لیے کر رہے ہیں، اور میں نے اس دنیا سے کیا لینا ہے، تھوڑا سا وقت گزارنے کے لیے آیا ہوں، یہاں کے بند ہوں گی، وہاں میرا رب ساری عزتیں مجھے ہی عطا فرما دے گا۔ اس حد فی الدنیا فریح القلب والجس۔ میرے عزیزوں یہ فقیری میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، درویشی میرے رسول پاک کی۔ حضرت بلال حبشی کو حضور نے سویرے سویرے بلایا اور بلا کے فرمایا بلال رات تو نے میرے بستر پہ کپڑا ڈبل کر کے بچھا دیا تھا، ڈبل کر کے بستر بچھا دیا تھا تو نے؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا نیند تو مجھے بڑی آئی ہے پر میرے نفل کچھ رہ گئے، آج کے بعد ڈبل کر کے نہ بستر بچھانا، سنگل ہی بچھانا، اس پہ ذرا کروٹیں بدلتا رہتا ہوں تو آنکھ جلدی کھل جاتی ہے۔ میرے دوستو آسا کہاں لوگ یقین کریں نا، گرمیوں میں سویرے اٹھتے ہیں نہ سردیوں میں اٹھتے ہیں، گرمی میں اے سی نہیں اٹھنے دیتا اور سردی میں بستر نہیں جان چھوڑتا، اٹھتے ہی نہیں ہم، بلکہ باقی کے معاملات بھی ہمارے اسی پریشانی کا شکار ہے۔ سنو اور یاد رکھو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہی میں فقیری سکھائی،
बादशाही में फ़कीरी मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाही में फ़कीरी सिखाई। हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने बुलाया तो कहा मेरा दिल करता है आपको मैं मदाइन का गवर्नर बना दूँ। हज़रत सलमान फ़ारसी बड़े तगड़े कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, बिकते बिकाते मदीने में आके बिके, फिर निगाह मुस्तफ़ा में बिक गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े तगड़े कबीले से ताल्लुक़ था। या हज़रत उमर ने फरमाया मैं आपको गवर्नर का जी जैसे आपका हुक्म है अमीर की बात मानना, गवर्नर बन गए। और गवर्नर साहब करते क्या है, गवर्नर साहब का हाल ये कि गवर्नर साहब ने वही फटे पुराने सादे से कपड़े पहने और एक हाथ में छड़ी पकड़ी है, कभी इधर घूमते हैं कभी इधर, मदाइन की गलियों में गवर्नर साहब घूम रहे। अल्लाह अकबर। जहाँ सवारियाँ उतरती थी ना शहर की, लोग जो किराया लेके घोड़ों पे सवार करते थे, जहाँ वो ला के उतारते थे, वहाँ एक शख्स उतरा, मेहमान आया किसी के घर में मदाइन। वो शख्स मेहमान आया तो उसके पास बड़े बड़े बक्से थे। उसने हज़रत सलमान फ़ारसी को घूमते देखा, कहने लगे ओ गुलाम इधर आए ना, ओ बोलिए ओ गुलाम इधर आओ। हज़रत सलमान फ़ारसी कहने लगे जी जनाब। कहने लगे मेरा सामान उठा और फला घर में मैंने जाना छोड़ के आ। जुर्रत तो करे कोई जुर्रत तो करे, काउंसलर साहब को भी आवाज़ देने की ताकत तो करे कोई, एक मामूली सिपाही को भी कहने की जो ना सब इंस्पेक्टर है ना वो किसी ओहदे पे फायर, सिर्फ एक सादा कौम का वो पैर उसको कहते तो इधर आओ गुलाम। भाई गवर्नर को ही कह दिया। गवर्नर साहब ने सर के ऊपर बक्सा उठाया है और गलियों में गुजर कहते हैं भाई गुलाम को रास्ता दे दो, जरा सामान वजनी है, तेरा गुलाम को रास्ता दे दो, सामान वजनी है, पीछे हट जाओ, जरा रास्ता दे दो। शहर में दाखिल हुए तो लोग दौड़े आए, कहा हुजूर हमें दे दे। फरमाया नहीं उसने मुझे कहा है गुलाम उठा। वो शख्स शर्मिंदा हो गया, कहने लगा हुजूर मुझे कब खबर थी कि आप गवर्नर हैं, गलती हो गई, मैं गुलाम क्या बैठा। हज़रत सलमान फ़ारसी रो पड़े, फरमाने लगे तू मेरा मौसल है, तूने तो मुझे मेरी औकात याद करा दी है। मैं गुलाम हूँ, मैं खजूरें बेचा करता था, मैं मदीने में नौकरी करता था, तूने अच्छा किया है। फरमाया ना तू तो मेरा मौसल है, तूने मुझे याद करा दिया, मैं क्या ना अब मैं ही लेके चलूँगा। रास्ते में जा रहे एक शख्स दौड़ा आया, कहने लगा हुजूर वजनी बड़ा है मुझे दे दे। ये बादशाह है, फ़कीरी हो रही है, हुजूर वजनी बड़ा है मुझे दे दे, मैं उठा लेता हूँ। तो हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाने लगे पहले वादा कर क़यामत के दिन मेरे गुनाहों का बोझ उठा लेगा, वादा कर। तू कहेगा अल्लाह के हुजूर के या अल्लाह सलमान के जो पाप है उनका बोझ मैं उठाता हूँ। कहने लगा हुजूर मैं तो अपना नहीं उठा सकता। फरमाया पीछे हट जाओ, अगर वहाँ मेरा कोई बोझ नहीं उठा सकता तो यहाँ भी कोई ना उठाए। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गवर्नर है सूबे। मेरे दोस्त हमारी ये जो झूठी अना है ना, लोग मेरा इस्तकबाल करे, मुझे उठ के मिले, मुझे प्रोटोकॉल दे, मेरा नाम जपे, मैं होती रहे हर जगह, बस मुझे ही लोग जाने। और मेरे अजीज इस धंधे से बाहर आ, नफ्स परस्ती की इस जंग से निकल आ, अपने मिजाज की इस किल्लत से निकल आ, अपने आप को जो बात नहीं भी आती होती उसमें भी हम दखल दे के अपना कोई ना कोई पैगाम और जुमला ज़रूर बयान करना चाहते हैं। कोई हमारा भी नाम लिख लो, हम भी शामिल है, हमें भी पता है इस गोरख धंधे का कुछ ना कुछ, हमें भी शामिल कर लो। ये नफ्स परस्ती की जंग है, इससे निकलो। अगर रब करीम ने बादशाही दी है तो इसमें फ़कीरी करो। कभी कभी अपने कपड़े खुद इस्त्री कर लेनी चाहिए, तो ना बोले आप लोग, मुश्किल काम बता दिए ना मैंने। किसके कपड़े इस्त्री करने को कहा? ये अल्लाह खैर करे, मैं क्या और मैं तो अनुमारे दी गल कर चली, भूले नहीं ना आप लोग। कभी कभी अपने कपड़े खुद इस्त्री, कभी कभी अपने जूते खुद पॉलिश कर, कुछ नहीं फर्क होता, इससे आपका लफ्ज़ कुचला जाए। कभी कभी ना, कभी कभी बावजूद मोटरसाइकिल और गाड़ी की मौजूदगी में पैदल सफ़र कर लेना चाहिए, कुछ नहीं फ़र्क होता। कभी कभी कोई आधा किलो चीनी पकड़ के दुकान से खुद अपने, कोई नहीं कहने लगा कि गरीब हो गए, मैं खुद ही उन्हें आधा किलो खाने कहने दो को कहता है। कुछ ना कुछ अपने नफ्स पे बोझ डाले भाई। कभी कभी आप भी कभी जो आपका मुलाजम है ना घर में, उसको बिठा के खा करें, बैठ यार मेरा दिल करता है मैं तुम्हें चाय बना के दूँ। कभी क्या करें घर वालों को, बैठो आज मैं तुम्हें खाना गर्म करके दे देता हूँ, कुछ फर्क नहीं आने लगा, इज्जत शान में कोई कमी नहीं आने लगी। कभी कभी ये काम, वो जो घूमने वाली कुर्सी रखी हुई है ना, जिस पे बैठ के हम हिसाब करते हैं, कभी कभी उस पर किसी गरीब को भी बिठा कर देखें, कुछ नहीं फर्क आने लगा। ये इस पर कुछ कोड़े बरसाए ताकि ये कुछ समझदार हो जाए। ये जो हमने बड़ी लंबी चौड़ी अपने लिए झूठी अना के दरवाजे खोल रखे, ये रोज हमें दूर कर रहे हैं। ये नफ्स परस्ती की जंग होती है, ये बंदे को अल्लाह के दरवाजे से दूर ले जाती है।
یہ نبی پاک کی محبت دل سے نکل